Devjit, Yes, sir. Prashant and Dhruv, Sorry, sir, I can't hear you. yeah, Prashant and Dhruv दोनों available हैं. They are for the demo only. Okay. So, Prashant, are you uh, able to hear us? Yes, sir. Dhruv, are you able to hear us? तो आपको आवाज आ रही है? You are not audible to us. Kindly unmute. ध्रुव, आपको मेरी आवाज आ रही है? so Prashant, can you tell me something about your qualifications? That what you did in the field of engineering or computer science? I have completed my computer science engineering in 2016. Post that, I have worked for different profile. Mostly it was related to development, uh, marketing, and my last experience was I was working for a cybersecurity company. I was doing lead generation for them. They were selling a vulnerability scanner. So I thought, why not to upskill myself in the technical domain. So that's why I'm started digging up more about cybersecurity. Okay, so are you clear up with your basics like Kali Linux and networking sectors? Yes, I have brushed up all my fundamentals like Kali Linux networking. I have working setup of a virtual lab, and I have performed some basic attacks of SQL injection and CSRF. So currently, as I have realized that it's a very vast domain and there are multiple kinds of profiles also. So I have choose for myself as a penetration tester only, but some other profiles are like SOC and other things. I believe they are in more in number, but for right now, I have decided to go with penetration testing only. Okay, so before moving towards penetration testing, so I would like to ask that are you clear about the jobs that what all jobs are present in the field of cybersecurity? Because cybersecurity is a field and there are multiple domains inside this field. So after completing your basics, you can partially move for the ethical hacking, or you can go for digital forensics, or you can go for SOC analyst. So talking about the job profiles, so you will get a less amount of job in digital forensics if you are not having an global certifications like CHFI and all. If we are talking about pen testing, the entry level certification and the basic knowledge should be up to the mark of the CEH, which is Certified Ethical Hacking. And moving towards SOC, at least you should have a good knowledge on CSA, which is Certified SOC Analyst. Okay, so you have selected the perfect domain towards the pen testing. So you want to study about the ethical hacking, right? Hmm. Okay. So are you clear about the modules that what all modules we are going to teach? Actually, I have researched by myself, but I'm not actually aware what modules. Recently, I was looking for the courses. Some of the basic things I have done by myself. So, like network scanning, enumeration, and these things I have practiced. I was looking for the more advanced topic like Active Directory penetration testing and privilege escalation. Okay, so CEH is the best part for your knowledge, but okay, तो आपने नेटवर्क नॉर्मल बेसिक्स आपने कर लिया है, जैसे कि आपको बबसूट चलाना आता है एज वेल एज नेसस हम्म। एंड वायर शार्क, ये सारी चीजें आती है चलानी आपको? मैंने मतलब थोड़ा बहुत देखा है। मतलब Okay. इस लाइक कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं चीज़ें स्टेप वाइज, वो प्रैक्टिस नहीं हुई है मेरी अभी। लोकल इन्वायरमेंट पे मैंने चीज़ें टेस्ट की हैं। Okay, fine. So we will come to the topic of CES, that what all topics we are going to cover in this session. Hi Dhruv, I think that you can hear me right now. Dhruv, can you hear me?
Okay, so I think that Dhruv is not available. So we will start with the topics, that what all the topics we are going to cover in this CEH portions. So let me share my screen. देवजीत, give me a second. ध्रुव, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो you can write down in the chat so that कि we can get to know कि हाँ exactly you can able to hear us. Okay, so hi Dhruv, you are in the chat right now. I can see your message. So Dhruv, can you please tell me about yourself, that what all education you have in the field of computer science? Uh, okay, Dhruv. So what I can do, I can start with the module of CEH. If you are having any doubt, you can just comment me in the chat box, and we will look after it. Okay. Okay, so my screen is visible to you all? Yes. Okay, Prashant. So we are in the module where we are going to see that what all things we are going to cover in CEH. So basically, we are going to start from the introduction to ethical hacking. All are the methodologies and the frameworks we are going to cover, and while pen testing, as well as DOS, we eventually do sometimes phishing, the credentials of the admin concepts and information security concepts, as well as the information security laws and the standards. This is the one of the most important key factor to understand in this first module. Why is it important? Every country have, so you should have a good knowledge upon their standards, because whenever you are performing on any protocols, so ensuring that what all protocols they use for the honeypot things, so that pursuance come from this topic. Next will be the module 2, which will be your footprinting and reconnaissance. Here we are going to see the footprinting concepts, the footprinting through this different types of search engines, as well as footprinting through the web services and social networking sites. So next we are going to cover one of the most important concepts while we do a pen testing of a website, is website footprinting. We usually gather the information from the victim's website, that what all protocols are open and what all protocols we can exploit further, as well as we can find someone's information on who is he. We can find the domain names, as well as the API's keys also, if they are vulnerable or publicly to the network, as well as the DNS network footprinting also we are going to perform in these things, because we are going to see the different type of protocols and the port numbers present open in an website, as well as the applications also. Next, we are going to see footprinting through social engineering. Here, the people usually do the phishing attacks, social engineering attacks, spamming attacks, and the QR code attacks also. QR code attacks are the one of the most famous and the prominent attacks used nowadays. Next, we are going to see some of the footprinting tools which we are going to use entirely in this module, as well as some of the advanced tools. And we are going to see at the end that the footprinting countermeasures. So why these countermeasures are important to understand? Because whenever we are performing this kind of footprinting, usually it creates a log inside a website, that you tried to access this website, you scanned that website, so all that things performs a log inside a website. So what should be the countermeasures behind it, what tools we should use regarding all the thing, so we can use the countermeasures in that sector only. Coming to the next will be the scanning the networks. So here we are going to see different concepts of scanning, like we used to scan the aggressive scan, as you know from before that things, that we used to do the aggressive scan, subdomain scan. So there are multiple types of scan we usually do in a website
to find the vulnerabilities, as well as some of the popular scanning tools we are going to perform, as well as the host discovery, that who is the real host and what is the admin access and what is the admin IP addresses with their respective MAC addresses. Then we are going to see the port and the service discovery, that what all port should we discover, and if the port is looking closed, then what all the techniques should be used to access that closed port in that site, as well as the OS discovery, like operating system, which operating system it's using, what are the banners it is using, what are the operating system inbound open files present in that through which we can access. Sometimes it happens that whenever you try to hack or scan an website, it usually blocks you through that thing. So what actually we do, say that we find a IP address or a MAC address of a system, then we access that system. Through that system we can only access the website. So this is not a direct part to hack a website, or it is an alternative of an indirect part to hack a website. Coming to the next point is scanning beyond the IDS and the firewall. Most of the big companies present nowadays, you will not see the small things like IDS and firewalls. You can't see in the smaller companies. These will be only present in the bigger companies. Why it should be present in a bigger companies? Because the IDS and the firewalls are one of the most expensive products of the networking things, right? So in this scenario, if some companies are not having this thing, it will be a easy task to hack their website. If they are having an IDS and IPS, so you should understand the concepts behind the IDS and the firewalls, as well as how to bypass that IDS and IPS systems. Where basically the IDS stands for intrusion detection system, and the IPS stands for intrusion prevention system. Both have different functionalities, and firewall usually helps us to block the unauthorized access also. Next, we are going to see some of the network scanning countermeasures which are present. Like if you are scanning through brute forcing or something else, and you are not getting that open port always open, so in that scenario, what things you can perform, the alternative things, those who can help you to scan the network. So till now, do you have any questions or doubts? No, sir. Okay, so next will be the enumeration concepts, that how to do enumerations, how to modify or complicate the net bias of the system, as well as these are the networking most popular networking protocol like SNMP, LDAP, NTP, NFS enumerations, SMTP for mail enumerations, DNS enumerations. So this is the entire module in which we are going to manipulate most of the networking protocols of a website or a web application, or you can say any kind of tool. So coming to the next module, which is vulnerability analysis. Now what we exploited in the third module, we started scanning the website. In the second in the third fourth module, we started that what all things we can modify in that website. Now here in the fifth module, we are going to see that what all are the vulnerabilities present on a website or a web application. So in this module, what we are going to see, that how to check the vulnerabilities analysis as well as vulnerability assessment concepts, that how we actually analyze different kinds of vulnerability in the category of high, medium, and lower, as well as the vulnerability assessment tools, that what all tools we use to analyze a different kind of vulnerability. Like you popularly know, for SQL injection, we can use most of the SQL injection labs, as well as the prototypes, as well as the different kinds of tools which are present nowadays to do SQL injection. SQL injection is one of the most popular attacks nowadays, but most of the companies really hide that SQL injection process, because nowadays most of the companies are using MongoDB as well as the cloud services, so it enhances their security. The companies, those who are working on MySQL nowadays, that can be accessed through an SQL injection. So coming to the next point will be the how to do the reporting if you are finding any kind of vulnerability inside a website. So how could you do a report and send it to that respective company for getting the Hall of Fame or bug bounty? So up to this, you are clear, I think so, Prashant? Yes, yes.
Okay, so coming to the next module is system hacking. So now this module has been changed. So right now we up to module 5 we understand this concept that how to take a website, then how to analyze it, then how to modify that protocols, then how to get an vulnerability and how to report that vulnerability. So up to module 5 we have completed this thing. So after that we are going to see the system hacking portion. So what all things we are going to see in this system hacking? So how to gain access on one system, like how to gain access Windows 10 or Windows 11 remotely, as well as using an pen drive or using something, some tools like we usually use the tools like rubber ducky and all. So you can perform this kind of tools or build this kind of tools through the help of the Raspberry Pi Pico W. So with the help of this, you can also build this tool. So by inserting this malicious command into someone's system, you can gain access to their system. Then you can escalate the privileges, that what all the security mechanisms are present, as well as making and remote connections of the victim system and your system, and the maintaining access. When you get an access to a victim system, then you changes its, or you take the data of victim system, then you have to maintain that access in victim system, because it's a clear point that whenever you get inside someone's system and you are not doing this portion, maintaining access portion, then after logging out you can automatically logged out, but the log files will be generated in that person's system. So for that thing you have to maintain the access in that person's system. If the person switched off the system also, you can maintain the access through malicious codes and all. And the last portion, if you want to exit from that person's system, what you can do, you can clear the logs. Why clearing log is a very important sector in system hacking? Because if you found guilty, and you when the forensics investigator will get the clear logs, and it will fluctuate your IP address and your MAC address. In that scenario, Indian laws are very strict nowadays. So it's best. It is a आ रहा है best. थोड़ी देर में. Uh, अच्छा, just should I wait? just 1 second, sir. 1 second. I'm coming Yes. and replying. Okay. No issues. Yes, sir. Carry on. Okay. Mhm. Okay. So up to this module 6, you are clear ki Yes, sir. actually what we are going to perform. Clearing log is important. Yes, clearing log is a very important task, because if you don't clear this and the person gets this log, then it will prove you guilty in the court. So it's a very vital thing inside and system hacking portions. Okay. Okay. Do you want to ask any questions regarding from module 1 to module 6? Mm. Sir, this vulnerability scanning and which we do with the help of tools, and what we do in the pen testing, uh, are these things are going to be clash with each other in future? Mm, clash, like, actually I didn't got your point. Actually, see, there are some tools like some companies are selling on the name of vulnerability remediation, No, no, and no, no, no. I totally understand. We are going to use the official tool which are recognized by all of the companies, and they are open source in nature. okay, Also, we are not you are going to use the paid tools. There okay, are only two to three types of vulnerability analyzing tools present in the commercial things. So the first one is the Nessus. So for Nessus, you have to buy a subscription, or you can use the crack version. But using a crack version will not predict an real outcome of that vulnerability. hmm, So we will work on the open source tools like everyone, like every people use. hmm. So we will work on that only. Okay. See, my concern is that if so many
people in cybersecurity domain are building their vulnerability scanners. So are these vulnerability scanners going to take job of the penetration testers? No. Because they are remediating vulnerabilities also. They are claiming that they are going to remediate up to 90%, 95%. नहीं, मैं, if you are comfortable in Hindi, then I can, I think Yes, that I yes, can sir. give you a perfect example. Yes, sir. So देखो क्या होता है चीजें ना, जो vulnerability scanner जो लोग बना रहे हैं ना, यहाँ हाँ, पे इस टॉपिक पे है, तो हाँ, यूजुअली क्या होता है कि सिर्फ एक ये मॉड्यूल बना देने से टूल में हम एक वेबसाइट को हैक नहीं कर सकते हैं। ये प्रोमिनेंट थिंग है। एक वेबसाइट को हैक करने के लिए पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है कि उसके आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, उसका डोमेन नेम क्या है, सब डोमेन्स कितने हैं। यू मतलब आपने कोडिंग की है तो आपको पता होगा ये चीज कि बहुत सारे सब डोमेन्स होते हैं एक डोमेन के अंदर। जी, तो जब हम अटैक करते हैं, हम सब डोमेन्स को अटैक करते हैं, मेन डोमेन पे अटैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हाँ, वो फुटप्रिंटिंग के थ्रू से ही मिलेंगे। आफ्टर दैट आपको ओपन पोर्ट्स को स्कैन करना होगा, फायरवॉल्स ढूंढने होंगे, ये सारी चीजें करनी होंगी। उसके बाद आपको एन्यूमरेट करना होगा, मतलब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी उस इन्फॉर्मेशन को आपको एक्सप्लॉइट करना है यहाँ पे बैठ के, कि कैसे एक्सप्लॉइटेशन होती है, कैसे उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आप वनरेबिलिटी को एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो स्कैनिंग टूल, वनरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स बना रहे हैं, यस बहुत सारे लोग वनरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स बना रहे हैं, पर वो इन चार चीजों का ऑटोमेशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ना हर हर आपने, अब आपका फोन आप यूज कर रहे हैं, अब हर 3 महीने में 4 महीने में अपडेट कर रही है कंपनी आपके फोन को। क्यों कर रही है वो अपडेट? हाँ, आपके फोन में सिक्योर जो पैटर्न्स ऑलरेडी, मतलब जो एंड्रॉयड 13 है उसको तो कब से हमने ब्रीच कर लिया है, एंड्रॉयड 14 निकालने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ना हम्म, सिक्योरिटी एनहांस की जा रही है। तो हम्म, इस चीज में हर वेबसाइट में भी यही चीजें होती है कि उनकी सिक्योरिटी हर मंथ एनहांस की जाती है। हम्म, वनरेबिलिटी हर वेबसाइट में होती है, जैसे कि ओवास टॉप 10 आपने सुना होगा, आप हाँ, कोडिंग हाँ, करते हो। तो ओवास टॉप 10 जो होता है वो हर वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। बट हर कंपनी ये ट्राई करती है कि अगर टॉप 10 प्रेजेंट है उसके वेबसाइट के अंदर, कोई बात नहीं, 2 महीने जाएंगे वो 2 वनरेबिलिटी को फिक्स करेगी, फिर और 2 वनरेबिलिटी को वो फिक्स करेगी, ऐसे धीरे धीरे करके वो फिक्स करती है। तो और ओके, कुछ वनरेबिलिटी निकल जाती है। तो रियल रीजन क्या है मेरे को ये स्टोरी बताने का, कि एक अगर हम एआई एजेंट के थ्रू से हम एक क्रिएट करते हैं, ऐसे कोई भी वेब, मतलब टोटली टूल क्रिएट करते हैं, फिर भी वो सिग्नेचर बेस्ड होगा, उसको आउटपुट देना पड़ेगा एक पर्सन को, तभी जाके वो ये अटैक्स परफॉर्म करके इंफॉर्मेशन को गैदर करके दे पाएगा। और उस चीज के लिए एक पेन टेस्टर की जरूरत लाइफ में हमेशा होगी। ओके, ओके, गॉट इट। और सर एक सवाल कि ये जो प्रोसेस है, लेट्स सपोज अभी मैं बड़ी कंपनियों की बात नहीं करता हूँ, ऑन एन एवरेज एक छोटी कंपनी की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एथिकली ओनली। कितना आसान है किसी को एक्सेस किसी का गेन करके बच के बाहर आ जाना? डिपेंड करता है कि सामने वाला विक्टिम कितना एजुकेटेड है। ओके, अगर उसको कुछ नहीं आता तो शायद से लाइफ टाइम के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। लुक, द थिंग्स ऑल टोटली डिपेंड्स अपॉन मैलवेयर्स, ठीक है? ये हम इस 7th मॉड्यूल में देखेंगे कि मैलवेयर्स कैसे क्रिएट किया जाता है, मैलवेयर्स के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मैलवेयर्स होते हैं। अब जो एजुकेटेड पर्सन भी होता है वो भी हैक हो जाता है, जो अनएजुकेटेड होता है वो भी हैक हो जाता है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी हैकिंग की अप्रोचेस क्या है। हम्म, अब तो आज के डेट में किसी को आप एक लिंक भेज के भी आप हैक कर सकते कर हो। सकते हैं। एक सिंगल क्लिक वो करेगा और उसका एंटायर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। पर हम्म, जिसको इस चीज के ऊपर नॉलेज होगा वो उस लिंक पे क्लिक नहीं करेगा ना। ऑब्वियसली। उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेगनोग्राफी टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। स्टेगनोग्राफी पता होता है क्या है? हाँ, हाँ, वो इमेज में लिंक को डेटा को छुप यस, इमेज के अंदर डेटा छुपा के भेजा जाता है, तो जब वो पीडीएफ ओपन करता है तो वो मेलवेयर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है उसके सिस्टम के अंदर। ओके, ओके, तो जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसको इस टाइप के अटैक किए जाएंगे, जो कम एजुकेटेड होगा उसको लिंक भेज के अटैक किया जाएगा, जिसको जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनको और अलग अलग एक दो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू से हैक किया जाता है। तो
ऑल टोटल बातें घूम फिर के आती है कि आप किस टाइप का अटैक कर रहे हो। गॉट इट। सर एक चीज़ और समझना था, अभी मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था वो यूएसए बेस्ड कंपनी थी, तो वहाँ मैंने देखा कि यूएसए की काम मतलब कंट्री में अभी दे हैव क्रिएटेड अ स्पेशल स्पेशल साइबर डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि साइबर स्पेस को वॉर स्पेस डिक्लेयर कर दिया गया है। सो व्हाट काइंड ऑफ स्किल एक इंसान को जरूरत पड़ेगी इफ समवन वांट्स टू वर्क फॉर सेम डोमेन मतलब इंडिया के लिए अगर कोई एक सेम डोमेन क्रिएट करना होगा, वैसी फोर्स क्रिएट करनी हो, तो उन लोगों को क्या स्किल की जरूरत पड़ेगी? देखो, ये स्किल जो साइबर के डिफेंस वॉरियर्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं इंडिया में। एक होती है ब्लू टीमिंग, एक होती है रेड टीमिंग। रेड टीमिंग का काम होता है दूसरे कंट्रीज के वेबसाइट्स को अटैक करना, उनको कॉम्प्रोमाइज करना और इंफॉर्मेशन को गैदर करना। ब्लू टीमिंग का काम होता है कि अगर कोई अटैक हो रहा है तो उसको मिटिगेट, रियल टाइम पे उसकी मिटिगेशन को करना, अगर डेटा लॉस हो चुका है उस केसेस में डेटा को रिकवर करना, या फिर जितना भी डेटा लॉस हो गया फर्दर लॉस ना हो, या फिर किसी को ट्रैक करना। और भी बहुत सारी चीजें होती है ब्लू टीमिंग के अंदर। तो तो स्किल्स सारे वही होते हैं, रेड टीम और ब्लू टीम के ही वो डिफेंस के लाइन पे भी वही यूज होता है? डिफेंस के लाइन पे भी वही होता है, इंडिया में भी पूरे वर्ल्ड में सेम चीजें होती है, पर रेड टीमिंग के लिए अलग टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, ब्लू टीमिंग के लिए अलग अलग टॉपिक्स पढ़े टॉपिक्स जाते पड़ेगा। हैं। हाँ। ठीक। हाँ, मतलब और अगर आपको ब्लू टीमिंग जानी है तो आपको फॉरेंसिक्स, इंसिडेंट हैंडलिंग, इंसिडेंट रेस्पॉन्स, थ्रेट इंटेलिजेंस ये पढ़ना होगा ब्लू टीमिंग के लिए, सॉक। ठीक और है। अगर आपको रेड टीमिंग में जाना है तो एक ही रास्ता है, वो है पेन टेस्टिंग। ओके। अब पेन और टेस्टिंग में भी मल्टीपल पेन टेस्टिंग्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल पेन टेस्टिंग, वायरलेस पेन टेस्टिंग, वेब पेन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, नेटवर्क नेटवर्क पेन टेस्टिंग, और भी बहुत सारे टाइप ऑफ पेन टेस्ट, आईओटी पेन टेस्टिंग, टेस्टिंग। बहुत सारे टाइप ऑफ होते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग किस में आएगा? रिवर्स इंजीनियरिंग ब्लू टीमिंग में आएगा। ओके। रिवर्स इंजीनियरिंग ब्लू टीम। तो मतलब अगर इंसान, अगर किसी ने डिसाइड कर लिया रेड टीम में अगर करियर बनाना है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ रेड टीम के ही कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए? हाँ, सिर्फ रेड पे ही करना चाहिए, क्यों ना दोनों कॉन्सेप्ट साथ में चलाना इट्स गुड। पर क्या है ना कि लाइफ में जो कंपनीज, अब आप अगर एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन करते हो हाँ। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि आपको एक एंट्री लेवल मिल जाएगी साइबर सिक्योरिटी में। अब हम्म। आपको प्रमोशन चाहिए होगी 6 महीने 1 साल बाद, तो उस सिनेरियो पे कंपनी देखेगी कि आपके पास नेक्स्ट कौन सा ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। मतलब इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी ये सर्टिफिकेशन बेस्ड है, आप जितने सर्टिफिकेशन करोगे आपकी नॉलेज उतनी बढ़ेगी, तो Okay. कंपनी भी उतनी हाईएस्ट पैकेज आपको देगी। तो 1 साल बाद अगर आपने कर लिया एक अलग डोमेन पे सर्टिफिकेशन, मतलब आपने पहले रेड टीमिंग पे करके आपने रेड टीमिंग की जॉब की, तो हम। अगर आप रेड टीमिंग की एक अपर लेवल सर्टिफिकेशन करते हैं, मतलब जैसे सीईएच है, सीईएच के ऊपर सीपेंट किया जाता है, तो हम्म। आपकी सैलरी 2x होने के चांसेस है, उस केसेस में 2x 3x होने के चांसेस हैं। पर हम्म। अगर आप उस सिनेरियो पे ब्लू टीमिंग कर रहे हैं बैठ के, तो हम्म। सैलरी 1-2x नहीं होगी, फिर आप टोटली एक अलग डोमेन को स्विच कर रहे हैं। फिर आप दो डोमेन पढ़ लिए हैं, फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप माइंड डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन से फील्ड में आगे बढ़ना है। गॉट इट, गॉट इट। और सर जैसे पेन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग और रेड टीमिंग, तीनों में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, नहीं, पेन दो, तीनों के तीनों एक ही चीज है, रेड टीमिंग के अंदर ही आते हैं ये सारी चीजें। ठीक है। ठीक। एथिकल हैकिंग का मीनिंग होता है कि हम एथिकली उनको हैक करते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी आप जोमेटो की वेबसाइट पे आपने वेब पेन टेस्टिंग सीख ली, और आपको जोमेटो की वेबसाइट में कोई वनरेबिलिटी मिली, और हम्म। आपने डायरेक्ट उनको रिपोर्ट कर दी चीजें, तो तो ये बिना बिना पहले से डिस्कस किए भी उनके लिए वल्नरेबिलिटी हो सकते हैं? हाँ, हमारे 2-3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे बग क्राउड हो गया, हाँ, ऐसे मतलब लोगों ऑफिशियल। ने तो ऑफिशियली डाल रखा है, जिन्होंने ऑफिशियली नहीं डाला उस पे नहीं कर सकते हैं। नहीं, उस पे नहीं कर सकते, फिर वो अनएथिकल हैकिंग हो जाएगा, आपको एथिकल हैकिंग करनी है। हम्म। ठीक है। तो ये चीज एक बाउंडेशन आ जाती है पेन टेस्टिंग में। हम्म। ठीक है। गॉट इट। शैल वी मूव फॉरवर्ड? हाँ। sure. Okay, so next we are going to see about malware threats. तो हमने सिस्टम एक्सेस वाला तो देख लिया, बट हम सिस्टम को malwares के थ्रू से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैलवेयर्स के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ मैलवेयर होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है, मैलवेयर एग्जीक्यूट कैसे करता है। बहुत सारे मैलवेयर ऐसे टाइप्स के होते हैं कि तुम अपना सिस्टम को ऑन करोगे और वो तुम्हारे बायस के साथ ही बूट होगा ऑटोमेटिकली। जब तुम टास्क मैनेजर में जाके देखोगे तो वो दिखेगा नहीं। बहुत सारे मैलवेयर ऐसे भी होते हैं, अगर तुमने ढूंढ के निकाल लिया मैलवेयर को और तुम उसको डिलीट कर रहे हो तो वो उसके चाइल्ड नोड्स बनाते जाएगा। पेरेंट चाइल्ड नोड समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ। कि वो नोड्स बनाते हैं और एक डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करते जाएगा जो उसकी चाइल्ड होगी। तो मैलवेयर कभी आपके सिस्टम से डिलीट ही नहीं होगा, आप जितना कोशिश कर ले। तो ओनली रीजन कि आप इसको चेंज कर सकते हो ओनली बाय चेंजिंग दी, मतलब आपका जो विंडोज है वो चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा चीजें। कमिंग टू द नेक्स्ट इज एपीटी कॉन्सेप्ट, ट्रोजन कॉन्सेप्ट। अब ट्रोजन्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक आ जाता है, बिकॉज ट्रोजन्स क्या करता है कि वो आपके सिस्टम के अंदर जाता है, वो वेट करता है, तब तक वो वेट करेगा, अपने आप को हाइड करके रखेगा दूसरे के सिस्टम में, जब तक आप उसको कमांड एग्जीक्यूट नहीं करते डेटा भेजने के लिए या फिर एंटायर सिस्टम को क्रैश करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैलवेयर्स में। देन वायरस एंड वॉर्म्स, दीज ऑल आर आल्सो द मैलवेयर्स। ये कैसे काम करते हैं, ये अपने आप को हाइड करके रखते हैं। अब फाइललेस मैलवेयर कॉन्सेप्ट्स की, हम मैलवेयर को कैसे विदाउट फाइल के थ्रू से भी सेंड कर सकते हैं। मैलवेयर एनालिसिस, मैलवेयर को कैसे एनालाइज किया जाता है। मैलवेयर काउंटर मेजर्स की, ये मैलवेयर हमारे सिस्टम में ही एग्जीक्यूट ना हो जाए या फिर विक्टिम के सिस्टम में जा रहा है तो वो अपने आप को मतलब हाइड तो कर रहा है एज वेल एज वो लॉग्स को भी क्लियर कर रहा है। ये सारी चीजें बताई जाएंगी। एंड एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर की, जो एंटी मैलवेयर जैसे कि मान लेते हैं कि आपको अगर मैं एक फाइल भेजता हूँ तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर देते होंगे, राइट? बट हम एक फ्री टूल यूज करते हैं, टूल का नाम है वायरस टोटल, वेबसाइट में मिल जाएगी। वायरस टोटल, तो हाँ जी। तो हम उसमें चेक करते हैं चीजें, और भी बहुत सारे टूल्स हम यूज करते हैं। जब भी हमें कोई लिंक या फिर कोई फाइल कुछ भी हमारे पास आता है, हम पहले उसको टेस्ट करते हैं कि उसमें मैलवेयर प्रेजेंट है या नहीं, फिर हम डाउनलोड करते हैं। सो दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स विल बी कवर्ड इन मैलवेयर थ्रेड्स। नेक्स्ट विल बी दी स्निफिंग अटैक्स। सो स्निफिंग अटैक्स में हम देखेंगे कि कैसे हम एक मैक अटैक कर सकते हैं। अब स्निफिंग क्या होती है? मान लो कि आप और मैं चैट कर रहे हैं और हमारे बीच में कोई थर्ड पर्सन घुस के हम दोनों की चैट्स भी पढ़ पा रहे एज वेल एज जो हम टाइप कर रहे हैं उसके की स्ट्रोक्स को भी कैप्चर कर पा रहा है वो, थ्रू मैक अटैक्स, डीएचसीपी अटैक्स, एआरपी पॉइजनिंग, स्पूफिंग अटैक, डीएनएस पॉइजनिंग एंड द स्निफिंग टूल्स। सो ये सारे टाइप्स ऑफ टूल्स देखेंगे, एज वेल एज हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम इसको पॉइजनिंग कर सकते हैं। पॉइजनिंग करने से क्या एक प्लस पॉइंट रहता है कि एंटायर नेटवर्क ही क्रैश हो जाता है। मतलब जब आपको लग रहा होगा कि आपके नेटवर्क में लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं आपके, तो बहुत सारे अटैकर्स क्या करते हैं उस सिनेरियो पे कि पूरे नेटवर्क को ही क्रैश कर देते हैं वो लोग। ओके। तो इस केसेस में जो लॉग फाइल होती है वो एंटायरली क्रैश हो जाती है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। नेक्स्ट इज सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग आज के डेट में बहुत ज्यादा चल रही है। जो लिंक वाला मैंने आपको बता रहा था कि हाँ हम जी। एक लिंक भेज रहे हैं, वो क्लिक कर रहा है, फिर उसका हम एक्सेस ले रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम हैकिंग के लिए तो बहुत ज्यादा ये यूज की जा रही है। सो इसमें इसके हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू से लिंक भेज सकते हैं, हम किसी को क्यूआर कोड भेज सकते हैं, किसी को हम एक वेबसाइट नॉर्मल भेज सकते हैं, उसके थ्रू से हम एक्सेस ले सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स के बारे में हम देखेंगे, सोशल इंजीनियरिंग के टेक्निक्स क्या होता है। इनसाइडर थ्रेट्स के बारे में देखेंगे, इम्प्रिजन ऑफ एन सोशल नेटवर्किंग साइट, आइडेंटिफाइंग थेफ्ट्स एंड सोशल इंजीनियरिंग काउंटर मेजर्स। ये एंटायरली सोशल इंजीनियरिंग के अंडर कवर होगी। नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस विच इज डॉस। डॉस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से आता है, डॉस और डिडॉस। इन दोनों का ही काम होता है कि इतने सारे ट्रैफिक भेज देना एक नेटवर्क को जो वो क्रैश ही हो जाए उसका एंटायर वेबसाइट। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सीबीएसई बोर्ड से 10th की है? नहीं, यूपी बोर्ड से। ओके, तो आपने सीबीएसई बोर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, ट्वेल्थ ट्वेल्थ सीबीएसई से ही की है। बस तो आपका जो रिजल्ट जब पब्लिश होता है, जब बहुत सारे आपने नोटिस किया होगा कि वेबसाइट क्रैश होती है। क्यों क्रैश होती है पता है आपको? बहुत सारे लोग एक साथ लॉग इन कर जाते हैं। हाँ, डीडॉस। तो डीडॉस। वो वन टाइप ऑफ डिडॉस ही हो गया। पर अगर ये सेम चीज आप अमेजोन पे ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा। क्यों जी। पूछो?
क्योंकि लोड बैलेंस कर रखा है उन्होंने। यस, क्योंकि ना उन्होंने लोड बैलेंसर का इस्तेमाल किया है, दैट्स वाई ये डीडॉस अटैक नहीं हो पाता। तो डीडॉस अटैक के भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। जिनके पास लोड बैलेंसर लगा हुआ भी होता है उनके पास भी होता है, क्योंकि ना हर लोड बैलेंसर की एक कैपेसिटी होती है। अब जैसे सिस्को सिस्को 3.45 लाख के ट्रैफिक को झेल लेगा, बट उससे ज्यादा ट्रैफिक अगर जाएगा वो झेल नहीं पाएगा, वो भी क्रैश करेगा। तो Okay. उतने बड़े चीज के लिए आपको एक एंटायरली बिग सर्वर चाहिए होगा। तो वो कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे कि डीडॉस के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। बॉटनेट्स के बारे में हम देखेंगे, तो यूजुअली बॉटनेट्स मोस्ट पॉपुलरली आपने नोटिस किया होगा कहाँ पे, पॉर्न साइट्स पे। तो आपने नोट ये देखा होगा कि बहुत सारे एड्स चलते हैं। तो अगर आप उस एड्स पे एक बार क्लिक कर लेते हैं तो वो क्या करता है, उस आपकी आईपी फेच करता है। वो आईपी फेच करके क्या हो जाता है कि आपकी मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस एज वेल एज आपकी एंटायर सिस्टम के डिस्क्रिप्शन दे देती है एक बॉटनेट पे क्लिक करने के थ्रू से। तो बॉटनेट कैसे बनाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो कवर अप किया जाएगा यहाँ पे। देन डॉस अटैक्स टेक्निक्स, डॉस के केस स्टडीज एज वेल एज डॉस काउंटर मेजर्स आल्सो. Next is session hijacking. Session hijacking is one of the most important and the valuable concept in this module. Why session hijacking is important? Session hijacking आपको कुछ knowledge है क्या होता है session hijacking? कुकी ग्रैबिंग करते हैं। यस, हम कुकी को ग्रैब करते हैं एज वेल एज मान लेते हैं कि मैं आपके वाईफाई, मतलब आप और मैं एक ही वाईफाई के अंडर बैठे हुए हैं। तो मैं आपके वाईफाई के थ्रू से आपका सेशन कैप्चर कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं ये चीज कि आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करने जा रहे हैं, एक वन टाइम ओटीपी आ रहा है, या फिर एक जो कुकी आता है आपका, या फिर आप कह सकते हो उसको जो प्राइवेट की पब्लिक की पास ऑन होती है। तो वो जो प्राइवेट की पब्लिक की होती है वो उसकी एक कॉपी हमारे पास भी आती है। तो उस केसेस में जो चीज आप एक्सेस करने जा रहे हो वो सारी चीजें भी हमें एक्सेस डायरेक्टली मिल जाती है। तो सेशन हाईजैकिंग के कॉन्सेप्ट्स हम इस पे कवर अप करेंगे। हम एप्लीकेशन लेवल सेशन हाईजैकिंग करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि आपका डायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू से मैं आपको हाईजैक नहीं कर पा रहा हूँ आपके सेशन को, तो मुझे आपकी एक ऐप दिखी जो कि वनरेबल है। अब ये एप्स आपको ओप्पो, वीवो, शाओमी, जितने भी चाइनीज ब्रांड है ना, एक्सेप्ट सैमसंग एंड एप्पल, ये जितने भी फोन है इनके थ्रू से एप्लीकेशन लेवल हाईजैकिंग करना बहुत इजी है, क्योंकि ना इसमें चाइनीज एप्स हैं जिनमें सिक्योरिटी बहुत ही लेस है। तो उसको उसके थ्रू से हम एंटायरली एक सेशन को ग्रैब कर सकते हैं। उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे, नेटवर्क लेवल सेशन हाईजैकिंग के बारे में देखेंगे, एज वेल एज द टूल्स एंड द काउंटर मेजर्स। अप टू दिस आई थिंक दैट यू आर क्लियर. Next is evading IDS, which is intrusion detection system, firewalls and the honeypots. तो यहाँ तक तो आपको पता ही होगा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में। आपको पता है क्या होता हाँ जी, इंट्रूजन डिटेक्ट करता है कोई सी भी टाइप के इंट्रूजन को। हाँ, कोई भी डिटेक्ट करता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली प्रिवेंट करता है, इसमें ह्यूमनलेस एरर नहीं होता है। तो फायरवॉल्स भी सेम है, हनीपॉट्स। तो कैसे हम इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे, काम कैसे करता है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, अगर ये अल्ट्रा हाईली प्रोटेक्टेड है तो इसको बाईपासिंग कैसे किया जा सकता है, स्पेशली आईडीएस, फायरवॉल एंड नैक एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी, जो कि एक इंफ्रा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, उसको कैसे बाईपास किया जाता है। इवेडिंग द फायरवॉल्स टूल्स क्या क्या यूज करते हैं, एक वेबसाइट के अंदर हनीपॉट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कैसे हम फाइंड आउट करें उसके बारे में, एंड इसके काउंटर मेजर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट इज हैकिंग वेब सर्विसेज। अब वेब सर्विसेज के हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। वेब सर्विसेज में कौन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हम परफॉर्म करते हैं उसके बारे में देखेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजीज, मतलब मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट में घुसे हैं एंड आपको ओपन पोर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, सारे क्लोज्ड पोर्ट्स हैं, बट स्टिल देयर इज वनरेबिलिटी। सो वो वनरेबिलिटी उसके डोमेन या फिर उसके सीएसवी के अंदर होती है। सीएसवी मतलब आपको पता है, कॉमन वनरेबिलिटी असेसमेंट्स। सीएसवी। यस, तो डिफरेंट है वो सीएसएस भी होता है जी। यूजुअली हम सीएसवी के बारे में ही देखेंगे। सीईएसएसवी जो होता है वो और भी इन डेप्थ मॉड्यूल्स के अंदर कवर अप होते हैं, मतलब वो इंटरमीडिएट लेवल में। ये जो कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं अभी, ये इसको हम कह सकते हैं कि एज ए बिगनर लेवल इतना सारी चीजें आनी चाहिए। ओके, ये सारा बिगनर लेवल पे है। ये सारा बिगनर लेवल है, इसके बाद इंटरमीडिएट आता है, उसके बाद ओएससीपी विल बी योर एडवांस पोर्शन।
तो ये OSCP का सिलेबस भी नहीं है ये? नहीं, ये ओएससीपी इससे बहुत ज्यादा है। ओएससीपी मतलब कहने को जाए तो ये ओएससीपी का 1/4 भी नहीं होगा। ओके, ये OSCP का 1/4 भी नहीं है। यस, ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है ओएससीपी। वो बहुत मतलब ओएससीपी वो करते हैं जिनको एट मतलब 15+ इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ पेन टेस्टिंग ओनली। OSCP, हाँ, उसका 1 लाख का वो भी है वाउचर। वाउचर उसके 1,45,000 की है। ट्रेनिंग मिला के ओएससीपी राउंड अबाउट आपके 2.50 तक पहुंच ही जाती है। ओके। वो बहुत ही एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन है। हाँ, और 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 वन उसके अटेम्प्ट होती है उसमें। ओनली 1 अटेम्प्ट? हाँ, अगर आपने 1 अटेम्प्ट में उसको क्लियर नहीं किया तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। ओके, टफ है। बहुत ज्यादा। तो ओके। मैं एक जी, चीज समझना चाह रहा था कि अब क्या कितनी परसेंट ऑफ जॉब इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए है कंपैरिजन टू अदर प्रोफाइल? बहुत ज्यादा जॉब्स है। मैं सिर्फ अगर बात करूँ कौन से स्टेट का आप नाम लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। मैं उनके वहाँ की जॉब वैकेंसीज बताता हूँ आपको। और उस पे कितना पैकेज इनिशियली एक्सपेक्ट कर सकता है एक इंसान? एज ए एंट्री लेवल, अगर आप नॉर्थ साइड में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली हो गया, पंजाब, गुजरात एंड ऑल, यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो योर स्टार्टिंग पैकेज इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी विल बी 25 to 30 फाइव स्टार्टिंग टू थर्टी पैकेज। LPA? नहीं, पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। 25 to 30 पर मंथ मिलेगा आपको। ओके। अगर आप 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद आपको मिल जाएगा 60 to 70, 80 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्टिफिकेशन स्किल्स एंड योर परफॉर्मेंसेस। ओके। ओके। पेन टेस्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि हर कंपनी देखना चाहती है वो है हॉल ऑफ फेम्स, कि आपके पास कितने हॉल ऑफ फेम्स है। सर्टिफिकेट्स? नहीं, ये बाउंटीज है। मतलब आप किसी भी वेबसाइट को पेन टेस्ट करते हैं और आपकी वो पेन टेस्टिंग की रिपोर्ट वैलिड निकलती है अगर, तो एक अच्छा। कंपनी आपको एक हॉल ऑफ फेम देती है। अब ओके। वो हॉल ऑफ फेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सर्टिफिकेशंस तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। ओके। मतलब जैसे कि अगर आपको सडन एक जंप चाहिए अपने सैलरी पे, तो आपको ओके। एक सर्टिफिकेशन करना होगा एंड विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको एक जंप मिलेगा, वो भी 30% इंक्रीमेंट के साथ। ओके, और बग बाउंटी पे भी ये चीजें मिलती हैं, हॉल ऑफ फेम? हाँ, बग बाउंटी पे ही हॉल ऑफ फेम मिलेगी और कहीं नहीं ओके। मिलेगी आपको। और कहीं नहीं मिले? ओके। बट एज कंपैरिजन टू डेवलपमेंट, क्या साइबर सिक्योरिटी की प्रोफाइल थोड़ी लो पेइंग है? नहीं, साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा हाई पेइंग है। एंट्री लेवल इसकी थोड़ी लो है। एंट्री लेवल लो है, एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद हाई है? बहुत ज्यादा है। यूजुअली साइबर सिक्योरिटी में कंपनीज वो पर्सन्स को प्रेफर करते हैं जिनके पास एटलीस्ट 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस हो इन दिस डोमेन। ओके। तो जो स्टार्टिंग एंट्री लेवल जो जॉब्स मिलती है उसमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और रिमोट जॉब VAPT के डोमेन में इजीली की जा सकती है? बहुत इजीली रिमोट जॉब ही रिमोट जॉब है। वीएपीटी में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि रिमोट जॉब दे देती हैं। एज वेल एज वीएपीटी में इतना ऑन साइट वर्क नहीं होता है, मुझे जितना पता है। हम्म। जैसे एक रिस्क ऑफिस से नहीं मैनेजमेंट होता। डोमेन है, एक सॉक डोमेन है, एक पेन टेस्टिंग डोमेन है, तो परसेंटेज वाइज किसमें लोग ज्यादा रहते हैं? मतलब क्या परसेंटेज होगा डिवाइडेशन का? अगर डिवाइड की बात करूँ तो जो सॉक डोमेन है वहां पे अगर आउट ऑफ 100 काउंट करने जाओ तो सॉक में 50% लोग काम करते हैं। 50% लोग सॉक में काम करते हैं? हाँ, द रीजन बिहाइंड इट कि ये बहुत ही लो पेइंग, मतलब सॉक में इतनी अच्छी सैलरी नहीं है। एंड हम्म। सॉक में एक चीज दिक्कत है कि 24/7 आपको सिस्टम्स के सामने मॉनिटर करना होता है नेटवर्क को, तो नाइट शिफ्ट्स भी होती है एंड हम्म। ऑफिस में ही होती है। मतलब मैंने बहुत ही रेयर केसेस में देखा है कि सॉक प्रोफाइल में आप घर मतलब घर से घर बैठ के से काम बैठ के करो। काम कर सके, हाँ। आपको जाना ही पड़ेगा एंड स्टार्टिंग बहुत ही कम सैलरी होती है एंड इंक्रीमेंट भी बहुत लेट मिलती है अनलेस एंड अनटिल यू हैव 2 to 3 ग्लोबल सर्टिफिकेशंस। गॉट इट। पेन टेस्टिंग में 30 to 40% काम करते हैं। हम्म।
द रीजन बिहाइंड इट के पेन टेस्टिंग में आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हो एज वेल एज आप बग बाउंटी भी कर सकते हो, तो साइड इनकम्स भी आपकी होती रहती है। और पेन टेस्टिंग में इतने ज्यादा सर्टिफिकेशंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब ओएससीपी तक जाने की किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस एंड अनटिल आप मतलब एमएनसीज में बैठने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ओएससीपी करना होगा। वरना अगर आप सिर्फ सीईएच और सिपेंड कर लेते हो तो आप आराम से पर मंथ आप 2 to 3 lakhs कमा सकते हैं सिर्फ घर पे बैठ के। बग बाउंटी वो साइड अलग से वो अलग आएगा। ओके, और सीएस जो और इन सब सारी चीजों से ही। तो हाँ इसमें क्या सिर्फ क्लाइंट को अप्रोच करना होगा पेन टेस्टिंग के लिए? यस आपको क्लाइंट्स को अप्रोच करना नहीं पड़ेगा। आपको बग क्राउड होता है, मतलब अच्छा। 2 3 वेबसाइट्स होते हैं, हाँ हाँ उनमें हाँ। ओपनली आता है कि आप इनके वेबसाइट को पेन टेस्ट करो। अगर आपका एक लेजिटिमेट रिपोर्ट होता है और हाँ। बहुत ही क्रिटिकल वनरेबिलिटी होती है तो वो हम्म। आपको बाउंटी भी देते हैं, साथ में हॉल ऑफ फेम्स भी देते हैं। ओके। ओके। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मुझे और समझना था कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है साइबर सिक्योरिटी में? थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, हम्म। जब आप कोई टूल को डेवलप कर रहे होगे यूज विद द हेल्प ऑफ एआई। ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बीच में आपको बताया कि आप अगर रबर डकी की बात करें तो रबर डकी क्या होती है, हम यूजुअली मालवेयर इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं उस डिवाइस को। वो एक टाइप ऑफ पेन ड्राइव डिवाइस ही है, बट जब भी हम किसी के सिस्टम में उसको यूज करते हैं इट रिएक्ट्स लाइक एन कीबोर्ड। सो जो ओके। मैलवेयर डिटेक्टर होता है सिस्टम के अंदर वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता एंड मैलवेयर इजीली स्प्रेड हो जाता है सिस्टम के अंदर। सो ये जो एंटायर चीजें मैंने ये बताई, ये टोटली सिर्फ पेन ड्राइव लगाने से ही ये सारी चीजें हो जाती है। तो दिस इज टोटली नोन एज ऑटोमेशन एंड ये टोटली वर्क करती है एआई एजेंट्स के ऊपर। आप इसको खुद भी बिल्ड कर सकते हो एक रास्पबेरी पाई पिको डब्ल्यू के थ्रू से। ओके। अच्छा, कई सारे लोग मिलके ही एक बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे से किसी टारगेट पे अगर हिट करें तो बग्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे? चांसेस वैसे नहीं बढ़ते। चांसेस ये होता है कि आप कितना क्रिटिकली उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीजों को। देखो ओके। स्कैनिंग आप जब करोगे ना किसी वेबसाइट को तो आपको समझ में आएगा जो स्कैनिंग 1 2 घंटे में नहीं हो जाती। अगर आप उसको मतलब फिल्टर करके स्कैन कर रहे हैं तो दैट्स डिफरेंट। आप 1 2 घंटे में किसी वेबसाइट को स्कैन करके कुछ हाँ। चीजें आप रिपोर्ट कर सकते हो, बट आप जब इसको एग्रेसिवली स्कैन कर रहे हैं तो हाँ। मे बी वेबसाइट का डेटा या फिर वेबसाइट की नेटवर्क जितनी बड़ी होगी वो उतने घंटे लगेगा। मे बी 1 दिन भी लग सकता है स्कैन करने में एक वेबसाइट को। ओके। तो ये सारी बाउंड्रीज हैं। हम्म। और सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होती होगी फिर? नहीं वैसे कुछ सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपके पास एक i5 का लैपटॉप होना चाहिए और जेन कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट i5 प्रोसेसर होना चाहिए। ओके। ओके। क्योंकि ना आप सब कुछ लाइनक्स पे ही रन करेंगे तो हम्म। आपका खुद का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन होगा, साइड बाय हम्म। साइड आपका वर्चुअल मशीन भी रन हो रहा होगा, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होगा। तो हम्म। सिस्टम थोड़ा हीट तो करेगा, हीट हम्म। करेगा, हम्म। क्रैश नहीं करेगा। एक न्यूज़ मैं देख रहा हूँ कि 3.5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी जॉब्स विल बी देयर बाय 2025। ये क्या सच में इतनी वैकेंसीज हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स में? अभी मैं कह रहा हूँ जो पेन टेस्टिंग में राउंड अबाउट सिर्फ इंडिया में 2 lakhs के ऊपर जॉब खाली है सिर्फ इंडिया में। ओके, खाली हैं? खाली है। आप कोई भी पोर्टल खोल के देख लो। आप इंडियन नेवी का परसों शायद से 5 6 दिन पहले निकला था इंडियन नेवी का ओके। कि विदाउट एंट्रेंस, ना आपको फिजिकल देनी है ना आपको कोई रिटर्न पेपर देनी है, बस आपके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और ओके। आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो आपको डायरेक्ट एंट्री दे रहे थे, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग आपको देते पर एंट्री हो जाती डायरेक्टली। ओके। तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे जॉब्स खुले पड़े, बहुत सारे जॉब्स है। मतलब आप अगर सर्च करोगे लिंक्डइन या फिर आप टिपिकली गवर्नमेंट जॉब्स या फिर ऐसी साइबर सिक्योरिटी जॉब्स इन इंडिया, हम्म। तो कितने जॉब्स है, बहुत ज्यादा जॉब्स है। आपके कैलिबरिटी पे डिपेंड करता है। मतलब आप चाहो तो आप स्टार्टिंग ही 50,000 से कर सकते हो बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपीरियंस। तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप मतलब क्या है ना, मतलब अपना सारा कॉन्सेप्ट कोड पे रखना। यूजुअली जब हम पेन टेस्ट करते हैं अप्पल रेबल्स में तो वी फाइंड हमें वनरेबिलिटी जावास्क्रिप्ट, HTML
ये सबसे मिलती है। ये सारे कॉन्सेप्ट CEH के अंदर नहीं है। ओके। ये इसके अपर लेवल सर्टिफिकेशंस के अंदर है, जिसमें कि हम एक मतलब वेबसाइट के कोड के थ्रू से, मतलब हम रिवर्स इंजीनियर करते हैं, कोड ओके। एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर कोड को एनालाइज करते हैं, कोड में वनरेबिलिटी को फाइंड करते हैं। हम ऐसे हम डायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू में ओपन पोर्ट्स ढूंढ के जो ह्यूमन मेड एरर्स है ना, वो हाँ फ्यूचर में बंद हो जाएंगी। जो वेब डेवलपर्स हैं अब हाँ वो एरर करते हैं, इसीलिए उन ओवास टॉप 10 रह जाती है। बट जब से मैं कहूंगा ये जो नो कोड लो कोड आ चुका है, हाँ तो एआईज बना रहे हैं वेबसाइट्स को। तो हाँ इन हाँ। दिस सिनेरियो क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो ओवास टॉप 10 है वो नहीं हो रहा है। अब आपको वनरेबिलिटी CVE में देखनी पड़ेगी, आपको वनरेबिलिटी देखनी पड़ेगी ओवास टॉप 10 के ऊपर जो होते हैं, या फिर जो फ्लॉज सिक्योर एआई के सिक्योरिटी फ्लॉज है। क्यों ना, एआई भी मिस्टेक्स कर रही है, मतलब एआई भी एक मशीन ही है। अगर हम्म आप मशीन को हैक कर ले रहे हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक हम्म वेबसाइट आप हैक नहीं कर पा रहे हो, कोई हम्म दिक्कत नहीं है, वो किसी डोमेन के थ्रू से चल रही है ना। तो हम्म। डोमेन को हैक करो पहले, फिर वेबसाइट ऑटोमेटिकली हैक हो जाएंगे। साथ में एडिशनली और 4-5 वेबसाइट अभी हैक हो जाएंगे एक डोमेन को हैक करके। तो एआई ये सारे एप्लीकेशंस की भी तो पेन टेस्टिंग होती होगी। यूजुअली अभी इतना खास एआई का रोल आया नहीं है, बट अच्छा। आ जाएगा धीरे धीरे करके। बट ये है ना कि विदाउट ह्यूमन एआई कंप्लीटली नहीं कर पाएगा। एक ह्यूमन चाहिए जो कि उसको हर अटैक का एक पैटर्न जनरेट करके दे रहा होगा, उसके बाद से वो उसको डिटेक्ट कर पाएगा, वो ढूंढ भी फाइंडिंग्स भी निकाल पाएगा, बट पहले एक ह्यूमन की उसको जरूरत है। हम्म। और साइबर सिक्योरिटी में एआई कैसे रिवॉल्यूशन ला सकता है? साइबर सिक्योरिटी में एआई रेवोल्यूशन कैसे, जैसे कि ये जो रिपोर्ट जनरेट करना होता है, अब ये मैनुअली हम करते हैं बैठ के। बट जो ये बात नेसस तो है, है। नेसस के बारे में मैं जो बता रहा था, पेड टूल है। हाँ अब हाँ। वो खुद से रिपोर्ट जनरेट करके देती है, मतलब वो स्कैन भी करती है, रिपोर्ट भी जनरेट करके दे देती है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो एआई इस तरीके से रेवोल्यूशन ला रहा है। अब जो ओपन पोर्ट्स हैं, अब मान लो मुझे नेटवर्क के किसी के पोर्ट्स को फाइंड आउट करना है, तो ओपन पोर्ट्स में मैं कमांड्स टाइप करूंगा, लाइनक्स खोलूंगा, फिर माई एसक्यूएल या फिर एसक्यूएल मैप के अंदर जाऊंगा, देन मैं मैप करूंगा उसके आईपी को, फिर उसकी यूआरएल को, फिर सब डोमेन्स को। तो इसको मैं ऑटोमेट करके एक एआई टूल बना सकता हूँ, ये सारी चीजें फाइंडिंग्स आउट करके मुझे बना के देगा। अब हम्म वीए, ये जो वेब पेन टेस्टिंग है ना, ये दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, मतलब इसको हम VAPT बोलते हैं, वनरेबल हम्म। असेसमेंट एंड पेन एंड टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हाँ। पेन टेस्टिंग तो हाँ। जो वीए है ना, ये वनरेबल असेसमेंट है, ये एक पार्ट है, और पेन टेस्टिंग एक पार्ट है। इन हम्म दोनों को जोड़ के बोला जाता है, पर दोनों अलग अलग पार्ट्स है। अब वीए हम्म में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि ये मेरी वेबसाइट है, आप इसमें से वनरेबिलिटीज को फाइंड आउट करके दो कि ये वनरेबिलिटीज प्रेजेंट है आपके वेबसाइट में, और ये ओपन पोर्ट्स प्रेजेंट है आपके वेबसाइट के नेटवर्क के अंदर। ठीक है, हम्म तो इस केसेस में एआई का बहुत बड़ा रोल है। पर जब हम्म बात आ जाती है पेन टेस्टिंग पे, तो उसमें एक ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। क्यों ना, 3-4 ऑटोमेटेड एआई टूल्स को कंबाइन करके फाइनल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए एक ह्यूमन की बहुत बड़ी रोल होती है। हम्म। सही है। और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना किसी वेबसाइट का विदाउट परमिशन इज आल्सो इलीगल? इट इज इलीगल अनलेस एंड अनटिल आप उसमें कुछ मॉडिफाई ना करो। आप वनरेबल असेसमेंट करो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको मिल रही है क्रिटिकल वनरेबिलिटी और आप उसको एक्सप्लॉइट, मतलब आप पेन टेस्ट करने जा रहे हो, उसका आपने रिपोर्ट निकाला, वो बड़ी बात नहीं है, बट हाँ। फर्दर आपने उसको पेन टेस्ट किया हम्म विदाउट ऑथोरिटी, देन हम्म वो अगर उनको लॉग्स में कभी दिखा, देखो हम्म बहुत सारी कंपनीज क्या करती है ना, अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है, राइट, हम्म और हम्म आप उसके वेबसाइट को अटैक कर रहे हो, और हम्म। आपने कुछ मॉडिफाई नहीं किया है, पर कंपनी को ये चीज पता लग गई जे आपने एक्सेस Assess- लिया है, हम्म भले ही आपने कुछ ना किया हो, तो वो हम्म आप पे एक फेक केस करेगी, और वो अपने हम्म। इंश्योरेंसेस क्लेम करेगी, तो इससे उसकी जेब तो भर जाएगी, फंस आप जाओगे 20 साल के लिए अंदर। ओके। इतने तो से ये पे केवल वल्नरेबिलिटी असेस करने पे? नहीं, पेन टेस्ट करने पे हाँ। वनरेबिलिटी एसेस आप कर सकते हो, पेन टेस्ट आप नहीं कर सकते। पेन टेस्ट नहीं कर सकते, केवल असेस। अच्छा, केवल असेस करके इतना तो पता लगाया जा सकता है क्या वल्नरेबिलिटी है? हाँ, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गॉट इट। उसमें कोई ज्यादा चार्जेस नहीं बनेंगे?
चार्जेस वैसे बनते नहीं है, चार्जेस तब बनते हैं जब आप कोई डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं उनके ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर या फिर कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंदर, जब आप मॉडिफाई कर रहे हैं। आप अगर देख के बाहर आ जा रहे हैं, दैट्स डिफरेंट। बहुत देख के सारे बाहर आ साइबर, जा रहा है तो कोई हाँ, उस पे केस नहीं बन कोई सकता। कोई केस नहीं, मतलब आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं हम्म कर सकते कुछ भी। गॉट एक इट। सिंगल एक सिंगल राइट सारे चीज के हैश वैल्यूज चेंज कर देता है, तो उससे इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम आती है। ओके, इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम आती है, हाँ, गॉट इट। ऑडिटिंग होती है ना डेटास की, तो हर हम्म 5 साल का डेटा हर कंपनी स्टोर करके रखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, तो ऑडिटिंग के टाइम पे ये निकलेगा बाहर। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। Okay, तो शैल वी मूव फॉरवर्ड, और बस यस 3 ही सर, मॉड्यूल है। यस सर। Okay, so the next module is hacking web applications. So web applications को कैसे हैक किया जा सकता है, वेब APIs को कैसे हैक किया जाता है, वेब हुकिंग्स कैसे करते हैं, वेब शेल्स को कैसे फाइंड आउट करके हैक किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा जो कि वेब एप्लीकेशंस के अंडर कवरिंग होती है। नेक्स्ट इज योर SQL इंजेक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको टोटली आती है, अगर नहीं भी आती है तो हम थोड़ा बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव टूल्स देखेंगे। यूजुअली ऑल्टरनेटिव टूल्स पता होने चाहिए, मतलब किसी भी एक टूल पे हमेशा डिपेंड होके नहीं रहना चाहिए। मान लो ऑन स्पॉट वो काम नहीं कर रहा है, तो व्हाट यू विल डू एट दैट टाइम, करना तो आपको पड़ेगा। हम्म तो इन दैट सिनेरियो हम सारी चीजों के लिए दो दो टूल्स देखेंगे, कि एक टूल नहीं चला तो दूसरा टूल का इस्तेमाल होगा। तो एसक्यूएल में भी वही सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, टाइप ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शंस, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शंस किए जाते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शंस के मेथोडोलॉजीज क्या हैं, एसक्यूएल इंजेक्शंस के टूल्स क्या होते हैं, इवेशन टेक्निक्स क्या होती है, एंड एसक्यूएल इंजेक्शंस के काउंटर मेजर्स क्या होने चाहिए। हम्म। ये हर चीज पे आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि काउंटर मेजर्स बताएं। क्यों हम्म। बताएं, पता है आपको ये सारी चीज? अब उसको एक तरह से कैसे टैकल किया जाए। अब मान लेते हैं कि हमारी खुद की एक वेबसाइट है, अब हम्म हम खुद एक कंपनी खोल के बैठे हैं, तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि सिक्योर कहाँ पे क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगाने से हम एसक्यूएल इंजेक्शन को रोक पाएंगे। हम्म। Coming to the last module which is hacking the wireless networks. So इस मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स कौन कौन से अब हम वाईफाई अडेप्टर्स यूज करते हैं पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए। तो हम्म कैसे वायरलेस के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वायरलेस एनक्रिप्शंस होते हैं। अब किसी भी आप वायरलेस मतलब वाईफाई अडेप्टर के थ्रू से किसी भी वाईफाई को आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, तो जो उसके जो प्राइवेट की एंड पब्लिक की होते हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं। तो हम्म। उसको डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है, फिर उसका एक्सेस कैसे लिया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में इस मॉड्यूल में देखेंगे। एज वेल एज वायरलेस थ्रेट्स, वायरलेस हैकिंग मेथोडोलॉजीज, वायरलेस हैकिंग टूल्स, ब्लूटूथ हैकिंग, wireless attack countermeasures, and wireless security tools. So this much will be covered in this portion. ओके, गॉट इट। So इतने तक कोई भी डाउट, कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। ये तो अभी बेसिक सी है, मतलब CH लेवल ही है। यस, और ये OSC ये बेसिक्स इसको हम नहीं कह सकते, मतलब एंट्री लेवल के लिए हम बेसिक्स कहते हैं इसको। बट एंट्री। बेसिक्स तो नेटवर्किंग, काली लाइनक्स, ऑपरेटिंग हाँ सिस्टम, इसको बेसिक्स बोला जाता है। हाँ हाँ। ये मतलब डीपर कॉन्सेप्ट है। बट अगर आप पूरा एडवांस लेवल का सोच रहे हो तो ये एडवांस लेवल तक का नहीं है, इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, उसके बाद ही आप इंटरमीडिएट लेवल पढ़ पाओगे। ओके ओके, गॉट इट। वैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था स्टार्टिंग में, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो माय नेम इज देवजीत महापात्रो, आई एम फ्रॉम ओडिशा। आई हैव completed my graduation in BTech Computer Science and Engineering with specialization cybersecurity. I am also doing MTech in cybersecurity and counter-terrorism. So I have worked for law enforcement agencies like income tax, GST, vigilance for 5 different states like Delhi, Punjab, UP, Odisha, West Bengal. I have also worked for different SaaS and PaaS companies, software as a service company and product as a service company, as an endpoint security engineer. And my current profile is digital forensics examiner. So I currently work for law enforcement agencies. ओके,
So digital forensics is a blue team portion, but आप Yeah, अभी उसको it is a blue teaming portion. So I am certified in CEH certified, CTIA certified threat intelligence analyst, certified forensic hacking and investigation, certified incident handler also. So I'm roundabout. I have 6 global certifications with me okay in red teaming and blue teaming also. okay. So that's why different profile पे आप काम कर पा रहे हो, blue team as well as red team. यस, क्योंकि मेरे पास एक तो दो दो ग्रेजुएशंस की डिग्री है साइबर सिक्योरिटी में, एज वेल एज मैंने 3 रेड टीमिंग के ग्लोबल सर्टिफिकेशंस किए एंड 3 ब्लू टीमिंग के भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन किए हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम एलिजिबल टू डू द रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग आल्सो. Okay. आपने कब सो ग्रेजुएशन किया था लास्ट? सो आई वाज ग्रेजुएटेड इन 2015. 2015. ओके. और फिर उसके बाद सीधे एमटेक. नहीं, आई टुक ए गैप. ओके. सो ठीक है, मुझे तो अभी स्टार्ट करने के लिए मुझे काफी कंटेंट लग रहा है. और ये कंटेंट टू बी ऑनेस्ट ऐसा अगर ऑन एन एवरेज बेसिस पे देखा जाए एक पर्सन के लिए तो कितना टाइम लगेगा उसे कंप्लीट करने में? मंथ्स. 1 ईयर? 2 मंथ्स. 2 मंथ्स? ओके यस, ओके. अगर आप 5 डेज क्लास ले रहे हैं. 5 डेज क्लास ले रहे हैं तो 2 मंथ्स लगेगा. यस. गॉट इट. ओके. क्योंकि ना दिक्कत ये है कि इसमें सिर्फ हम थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे. सो व्हेन एवर वी आर डूइंग प्रैक्टिकल्स, तो हम्म. उसमें थोड़ा ट्रबल शूटिंग होते ही होते हैं. मतलब कुछ चीज आपको समझ में नहीं आएगा, कोई कोई चीजें आपके पास रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी आपके लैपटॉप में, तो हमें रिक्वायरमेंट्स डाउनलोड करनी होंगी. सो इन दैट सिनेरियो थोड़ा टाइम लग जाता है. तो 2 मंथ से मतलब एक 10-15 दिन इंक्रीज भी हो सकता है. हम्म. बट यस, 2 मंथ्स में कोशिश हम पूरा करेंगे कंप्लीट करने की. ओके. जैसे ये आप गवर्नमेंट प्रोफाइल पे ही काम कर रहे हो, इसको कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब ही कह सकते हैं इसको? नहीं, इसको हम प्राइवेट जॉब कह सकते हैं. आज के डेट में कोई चीज डायरेक्ट गवर्नमेंट हायर नहीं कर रही है, सारे प्राइवेट कंपनीज टेंडर्स ले रहे हैं ओके. एंड प्राइवेट कंपनीज ही काम करवा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में. सो वी आर वर्किंग अंडर प्राइवेट कंपनीज, बट काम हम गवर्नमेंट के अंदर करते हैं. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी के अंदर से करते हैं. गॉट इट. यस. ओके ओके. ठीक है. एंड व्हाट वुड बी फी स्ट्रक्चर फॉर दिस कोर्स? एक्चुअली आई डोंट नो रिगार्डिंग दिस थिंग. सो आप तो उसके लिए एक महिमा आपको कॉल कर लेंगे प्रशांत, तो आपको सारा डिटेल में वो आपको बता देंगे एग्जैक्टली कितना टाइम ड्यूरेशन है और क्या इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा. ऑलराइट सर. ओके प्रशांत, सो आई थिंक दैट आपको सारी चीजें क्लियर है. हाँ, मुझे सारी चीजें क्लियर है. ओके, सो कोई और क्वेश्चंस, एनीथिंग जो आपको पूछना हो? लाइक जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th के बाद ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो लेट्स सपोज अगर वो अगर कोशिश करते हैं विदाउट एनी डिग्री जस्ट टू हैव स्किल्स इन देयर रिज्यूमे, तो क्या उनके लिए पॉसिबल होगा विद रिस्पेक्ट टू वैकेंसीज जिस प्रकार की हैं अभी करंट सिनेरियो में? पॉसिबल हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मैं गलत नहीं बोलूंगा, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर ए डिग्री. मतलब एटलीस्ट आपके पास बीसीए तो होना ही चाहिए. बीसीए होना ही चाहिए. हाँ, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब कंपनीज में आपने जॉब किया है, आपने देखा होगा 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर. एक जो लो कंपनीज होते हैं, एक मीडियम लेवल होते हैं, और एक हायर जो कि एमएनसीज होते हैं. हम्म. तो जो लोअर लेवल कंपनीज है वो तो बीसीए या एमसीए ऐसे करके ले लेंगे, बट जो मीडियम लेवल कंपनीज है वो उनको एक इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए ही चाहिए होगी. सो वो आप इंटर्न कर सकते हो. मतलब आपने 2 साल, इंजीनियरिंग वैसे बीटेक की 4 साल होती है, तो हम्म. आप 2 साल कॉलेज करके नेक्स्ट थर्ड ईयर से आप एनओसी लेके किसी कंपनी के अंडर जॉब कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा. नहीं तो हम्म. बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे इग्लू हो गया, दिल्ली में ही है. इग्नू से प्राइवेट करके. हाँ, वैसे ओके. मतलब इग्लू से करते करते यहाँ भी करते रहेंगे, तो इग्लू से डिग्री भी निकल जाएगी और यहाँ से सर्टिफिकेशन भी. एक टाइम, मतलब एक ही टाइम से 2 चीजें हो सकती हैं. एंड स्किल ही मैटर करता है.
एट द एंड स्किल ही मैटर करता है। जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो कभी काम में नहीं आता। प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन अब करो या फिर 2 साल बाद कुछ ग्रेजुएशन लेके करो, बात तो एक ही है। अच्छा, क्या प्रोसीजर होगा अगर एक बार स्किल सीख जाते हैं और लेट सपोज कुछ इंटर्न्स को हायर करके साथ में लेके किसी कंपनी के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग के एक तरीके से प्रपोजल बना के फॉरवर्ड करके क्लाइंट्स उठाना, ये कितना फिजिबल है आज के टाइम पे? फीजेबल, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन नेटवर्क। जैसे आज के डेट्स पे अगर जॉब की बात की जाए ना, तो लिंक्डइन में सिर्फ जॉब डाल देने से जॉब नहीं मिल जाती, रेफरेंस होना चाहिए। मतलब आज के डेट में जॉब रेफरेंसेस के थ्रू से मिलती है। तो हाँ हाँ। बिजनेस भी एक टाइप ऑफ ऐसे ही चलती है। मतलब इफ यू हैव गुड रेफरेंसेस देन आपका जॉब हो जाएगा। और ऐसे ही नहीं कंपनी खड़ी हो जाती। कंपनी के लिए आपको एक ऑफिशियल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, मतलब पेन टेस्टिंग करने के लिए, जिसको सर्टिन बोला जाता है। अब सर्टिन के लिए एटलीस्ट आपकी कंपनी को 10 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द डोमेन ऑफ पेन टेस्टिंग, तभी जाके गवर्नमेंट अप्रूव करेगी इस सर्टिफिकेट को, तभी आप ऑफिशियली आपकी कंपनी के नाम पे पेन टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। मतलब किसी को अप्रोच करके, जब तक आप सर्टिन इम्पाउंडेड नहीं है तब तक आप किसी को भी अप्रोच नहीं कर सकते। तो 10 years का एक्सपीरियंस केवल पेन टेस्टिंग में होगा तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ, सिर्फ पेन टेस्टिंग पे ही होना चाहिए। तो वो किसी भी लेवल ऑफ पेन टेस्टिंग हो सकते हैं, नेटवर्क, आईओटी, एनी काइंड ऑफ पेन तो टेस्टिंग। बीच के 10 साल कैसे, जब तक सर्टिन नहीं होता, बीच के 10 साल कैसे क्लाइंट अरेंज करेगा? रेफरेंस, रेफरेंस, बग रेफरेंस। क्राउड, वेब3। ओके ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, गॉट इट सर। ओके, so I think that we are done with our session. So thank you for giving your time. थैंक So यू सर। thank you sir also for giving your time. Thank you, And Devaji. Thank you very much. okay, so actually Dhruv was not there in the session. So sir, you can you please tell me that Yeah, what would yeah, definitely. I will coordinate with him. Maybe possible है वो कल join करेगा. I'll give you a call. वो बाकी की discussion हम call पे करते हैं. Okay sir. So thank you everyone, थैंक यू and सर। thank you Prashant for giving your time. Thank you. थैंक यू सर।